Good morning, students. So today we will take another process of the risk and insurance management. And till now we have covered a lot of things from the unit 2. And last classes we have already discussed about the risk assessment as well as also some points of the risk analysis. So, and also we have discussed 2 points regarding the risk analysis method. We have already covered there is a qualitative method, quantitative method and the semi-quantitative method. Students, today we will discuss about the concept of the risk analysis and the benefit that is of the risk analysis, and also we can discuss about the what are the process of the risk analysis. Okay, so 3 things we have to carry now. Okay, let us start it here. So the topic we have to discuss here, that is concept of risk analysis. Second, we will discuss about that is mostly there is the benefit of the risk analysis. Benefit of risk analysis. And third, that is steps in risk analysis process. So when you are discussing about the concept of the risk analysis, students, so briefly we have to know that is already after the assessment we are discussing that is what is the risk, what is the analysis. Okay, here mostly the analysis means we have to predict that is how much it affects to the life. Okay, to whom it is affected, who may be that is suffered, maybe that there is a chances of suffer. These are the things that is we have to discuss in the what happened, that is the risk analysis. Okay, so students, so listen, when we are going through the concept of the risk analysis, generally we have to talk about the analytical process. So analytical process means what happened? This process it is only used, or this process can predict or provide the information regarding the what? That undesirable events. Desirable events नहीं है, हमें जो अनडिजायरेबल जो कि हमें पता नहीं होता है, उसको जो कि हमें अंदाजा नहीं होता है, उसको हम इवेंट्स को हमें क्या करेंगे? That is, we have to get an information. And another, that is the process of estimating the probabilities. You know what is the probabilities? It may be or may not be happen, may be happen or may not be happen. It is a chance. Risk may happen, risk may not be happen. But we have to what? Expected the consequence of the identified risk. जो कि identified किए उसको हम expect कर सकते हैं, उसका consequence, उसका result को हम identify करेंगे. Another, the detailed examination regarding the what? Assessment. जो कि हमने पहले से assessment किए रिस्क को, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें? पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हैं. असेसमेंट मतलब we have to calculate it. Either the risk will be that is to us or not. The risk will be how much it will be effect to us. That we have to assess it. And evaluation भी करना है. Risk evaluation is also great. What? That is the topic here. Okay. Another, and here after evaluation, then we have to report to the risk management, जो कि
अल्टरनेटिव अल्टरनेशन होते हैं यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग करते हैं नेचर ऑफ द अनवांटेड आउटकम्स, बिकॉज रिस्क इज नॉट द वांटेड आउटकम्स, रिस्क इज ऑलवेज द अनवांटेड आउटकम्स। कभी भी हम नहीं बता पाएंगे कि रिस्क हमारा कुछ नहीं है, बैठे बैठे भी लोग जान चले जाते हैं, दैट इज वांटेड ऑफ द रिस्क ऑल्सो। लाइफ के ऊपर कोई भी हम दैट इज प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इट इज ए वी कैन सस्टेन अप टू द 70 years, ओके। और लाइफ में कभी भी नहीं बोल पाएंगे दैट इज ये हमारी दैट इज कुछ मुसीबत आ सके, दैट इज मोस्टली व्हाट हैपेंड, इट इज द देयरफॉर आई एम टेलिंग दैट इज व्हाट हैपेंड अनवांटेड आउटकम्स। सो द प्रोसेस ऑफ अनवांटेड जो कि अंडरटेकन, जो कि डील करते हैं हमें मैटर में, एक्चुअली हमें प्रोसेस करना है कितना डेंजर, पोटेंशियल डेंजर, और हमें मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर को, और क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली जब हमें इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो पहले दैट इज व्हाट हैपेंड, इसमें से हमें डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ओके। अनदर देन वी हैव टू से दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, okay, risk assessment. Then third point, that is risk management, that is risk management, okay. Then fourth point, that is risk communication. These are the very very important things we have to take it, okay. My dear students, listen here. मुसीबत या danger, if we are identifying or if we are that is finding some dangers may be happened, chances of danger is there, then we have to communicate. मैंने जो यहाँ पे जो रिस्क एनालिसिस के लिए हमें जो यहाँ पे पॉइंट लिखे, हमें पहले हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। जो हजार्ड को जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, दैट इज व्हाट हैपेंड, वी हैव टू फाइंड इट व्हाट टाइप ऑफ हजार्ड इट इज, ओके। देन आफ्टर द असेसमेंट भी करेंगे, दैट इज किस तरह की रिस्क हो सकता है, उसको भी हमें असेसमेंट करना है। देन इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ बचाना या अवॉइड करना रिस्क को, ये इट इज अ वेरी ग्रेट व्हाट, दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ रिस्क मैनेजर। सो रिस्क मैनेजमेंट होने के बाद दैट इज यू हैव टू कम्युनिकेट दिस टू द पर्सन हु मे बी इफेक्टेड, communicate to the person who will take charge of the risk management, communicate to the person who can save this or who can help to avoid the risk. हमें इन लोगों के पास हमें कम्युनिकेट जरूर करना है। बट स्टूडेंट्स, जो कि हमें डिस्कस करना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब मैंने पहले से बोल चुका हूँ कि जो पोटेंशियल हार्मफुल है, हमें जो गिवन कंटेक्स्ट के लिए उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। रिस्क असेसमेंट में हमें रिस्क इवैल्यूएशन करना है, जो कि हजार्ड से हमें आता है। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है कि ये रिस्क असेसमेंट और जजमेंट करना है, हमें पहले जजमेंट करना है। रिस्क मैनेजर हो या डिसीजन मेकर है, तो जो भी कुछ होता है उसे हमें फॉर्मुलेटेड करके बताना चाहिए। एंड हमें और यहाँ पे मेजर करना है, वेइंग पॉलिसी मीन्स अल्ट्रेशन, जो कि कंसल्टेशन करना है। हमें कभी भी चुप नहीं बैठा पाएंगे, कभी भी किसी को भी हमें दैट इज वी कैन नॉट से दैट इज व्हाट हैपेंड, हाउ द रिस्क कैन बी ओनली दैट इज। बेटा देखो क्या होता है, हमें जब अंदाजा होता है कि यहाँ पे रिस्क होगा, चुपचाप बैठ सकते क्या? नहीं ना, ये नुकसान हमें ना हो वो भी सोचना चाहिए, ये नुकसान और किसी को ना हो वो भी हमें देखना चाहिए। तो अनदर पॉइंट दैट इज द रिस्क कम्युनिकेशन, मैंने जो पहले बताया, दैट इज ये जो है ना, ये टोटली हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड द रिस्क मैनेजमेंट, ये जो मैं पहले से ये थोड़ा मैं और चेंज कर सकता हूँ। तो क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, रिस्क हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हुआ, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन बाद जो कि हमारा होता है ये है रिस्क असेसमेंट, ये है रिस्क असेसमेंट। ये रिस्क असेसमेंट होने के बाद व्हाट हैपेंड, दैट इज नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कैरी ऑन, दैट इज द व्हाट हैपेंड रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। ये है हमारा कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें मैनेजमेंट तक पहुंचाना है, ये डिटेल है व्हाट, दैट इज द कम्युनिकेशन।
This is the known as the what? That is the risk communication. This is the risk communication. Okay, this is the risk communication. Okay. So students, so this is the clear concept of the risk that we have already understood, and we have already explained it. That is how we have to face the challenges of these other things. Now the next topic I will explain you, that is what the benefit of the risk analysis. रिस्क एनालिसिस में हमें क्या बेनिफिट होता है, किसको बेनिफिट होता है, किस स्तर तक हम बेनिफिट दे सकते हैं, हमें ये मेजर करना है. जो रिस्क एनालिसिस होता है हमें इट कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव इट्स सिक्योरिटी. जो सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी नंबर ऑफ वेज होते हैं और बहुत सारा तरीके में होते हैं, उसको हमें दैट इज फाइंड आउट कर सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप and the extent of the risk analysis, organization, how it is used to or result to help this thing. So हमें help करने के लिए पहले क्या क्या मैं कुछ points पे बताता हूँ यहाँ पे. That is, you have to identify the rate, the compare the overall impact of the risk to the organization. मतलब identify करना है, उसका rating देखना है कितना तक ये hazard हमें सफर कर सकता है, कंपेयर करना है ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक, ये फाइनेंशियली एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट दोनों की देखना है. क्योंकि डेंजर कभी भी जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है. फाइनेंशियल दैट इज क्या, दैट इज रिस्क भी हो सकता है बिजनेस में. सिंपल बिजनेस रिस्क को छोड़ने के बाद भी हमें फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है. पहले हमें it helps to identify these things, identify the financial risk as well as the what happened organizational impact. हमें यह देखना है. Second, it identifies the gap in security and determine the next step how to eliminate the weakness. किस तरह की जो weakness है, किस प्रोसेस क्यों ये hazard हुआ, उसे हमें दूर करने के लिए हमें बहुत सारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत सारा तरकीब समझाता है, बहुत सारा आइडिया हमें देता है. दैट इज हमें अगर ये एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा. हाँ रिस्क हो गया छोड़ दो बस खत्म, ये नहीं. हमें रिस्क को एनालिसिस ठीक से करना चाहिए, एग्जामिन ठीक से करना चाहिए, ताकि वी कैन प्रेडिक्ट दिस थिंग, वी कैन स्टॉप द रिस्क फ्रॉम अप टू दिस मार्क. वी कैनॉट गो और नेक्स्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग द अगेन द रिस्क may not come, we have to predict all the things. And another, enhance the communication and the decision making process as they relate to the information security. So information security के लिए हमें communication भी देना है, decision making जो करते हैं उनको भी communicate करना है, process को भी find out करना चाहिए. ये सभी हमारा काम है जो कि risk analysis से हमें पता चलता है. Another, improve security policies. जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो प्रोसीजर है, वो हमें डेवलप करता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड तक. और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होने का जो ये हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और ये इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी पॉलिसी या प्रोसीजर तक काम करता है. अनदर, यू हैव टू पुट द सिक्योरिटी कंट्रोल. सिक्योरिटी कंट्रोल इन प्लेस ऑफ द मिटिगेट द मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क. सिक्योरिटी कंट्रोल करेंगे तो हमें जो रिस्क होता है, जो हमारा इंपोर्टेंट रिस्क होता है, जो मिटिगेट हमें कर सकते हैं व रिड्यूस कर सकते हैं. अनदर, वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉइज अवेयरनेस. हमें so increases the employees awareness about the security measure, and we have to highlight all the practices during the risk analysis process. And another last point we can discuss, that is we can say highlight these things. We have to understand the financial effect of the potential security risk. जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है उसे हमें देखना चाहिए. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सपोज कोई लेबर दैट इज ड्यूरिंग वर्किंग आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसका एक्सीडेंट हो गया, शायद उसका पैर चला गया, तो नाकाम हो गया. वो फिर
he is not able to come to the organizations. So हमें क्या करना चाहिए? उसे सारे जीवन रहने के लिए हमें उसका बच्चों को कुछ नौकरी देना चाहिए, उसको पूरा फैमिली को उठाने के लिए हमें भरण पोषण करना चाहिए, जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेप्स लेना चाहिए। ये हमें अगर हमारा फाइनेंशियल अच्छे है तो हमें ये कर सकते हैं। आजकल कंपनी में बहुत सारे कंपनी में ये छुपा देते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े स्ट्रिक्टली दे आर कमिंग अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर ऑलवेज फाइंडिंग ऑल द थिंग्स। ओके, सो हमें फाइनेंशियल रिस्क भी उठाना चाहिए, फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस व्हाट हैपेंड और टू पुट इनटू द पोटेंशियल रिस्क एनालिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन द थर्ड category that we have to discuss, that is what happened, what are the steps in the risk analysis process. Okay, the risk analysis process. The risk analysis process, we have to see, that is one point, that is conduct a risk assessment survey. Number 2, identify the risk. Number 3, analyze the risk. Number 4, develop the risk management. Develop a risk management. Or implement the risk management. Then monitor the risk. Students, so when you're discussing about the things, today's the last topic we have to see or discuss, that is what are the steps in risk analysis process. So हमें पहले conduct the risk assessment survey. First step, getting input from the management. So or from the departmental head. It may be the critical, but risk assessment प्रोसेस को चालू रखना चाहिए। हमें सर्वे करना चाहिए ताकि कहाँ से बिगिन होता है। डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिक होना जरूरी है ताकि थ्रेट हमें विद इन द डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट पे पता चले। ओके, सो अगर स्मॉल से छोटा सा घाव अगर हमारे कहीं पे दिखा देते तो हमें डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाकर उस घाव का ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो वो घाव धीरे धीरे बढ़कर कैंसर भी हो सकता है। तो आप जाकर डॉक्टर को पूछेंगे, सर ये कैसे हो गया, छोटा सा घाव कैंसर बन गया? अरे भाई तू पहले से आना चाहिए था, पहले से ही जो रिस्क तुम्हारे शरीर में देखा गया या तुम्हारा पैर में जो दिखा, अभी तुम्हारा पैर को काटना चाहिए, काट देना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब क्या है? दैट इज अगर हमें सर्वे नहीं करेंगे या असेसमेंट ठीक से नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली वी विल फेस द रिस्क। सो हमें ये जरूरी है हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड असेसमेंट ठीक करना है और उससे हमें दैट इज सर्वे भी ठीक करना है। सो अनदर दैट इज व्हाट हैपेंड, आइडेंटिफाई द रिस्क। आइडेंटिफाई द रिस्क मतलब क्या करना है? रीजन फॉर परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट हमें इवेल्युएट करना है। आईटी सिस्टम में या अदर जो कि एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ द रिस्क इन द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जो भी डाटा जो कि एम्प्लॉइज में सब कुछ होता है, what is the possible adverse events that could be occur, either human error या fire या flooding or earthquake, whatever may be, we have to see it, find it, and we have to, another question it is there is, what is the potential that integrates the system, it will be compressed or that it won't be available, we have to find it, okay, because these three things
we have to help, it will be help in the identify the risk. What are the risks? Second, what are the possible adverse of the effects of the risk may be occur? And third, what is the potential that integrate the system? That these three things here to very, very important, and these three things you have to put out when you are identifying the risk. And third, then already you have discussed that in the so many things about the analysis. So analysis the risk होना जरूरी है. Once the risk is identified and risk analysis process पे काम करना चाहिए, जो कि हमारा likelihood, जो कि हमारा consequence से related होता है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट का होता है, उसके ऊपर भी हमें निर्भर करना चाहिए. फिर इसके बाद हमें डेवलपमेंट करना है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान. यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्लान को दैट इज व्हाट हमें डेवलप भी करना है. ओके, तो हमें प्लान है. क्या प्लान? सो प्लानिंग इज वेरी वेरी की पॉइंट सक्सेस ऑफ मैंने पॉइंट ऑफ द की सक्सेस दैट इज बेस्ड ऑन द मोस्टली एनालिसिस which assets are available or which threats may be probably affect to that of the asset negatively, that we have to find it, and a risk analysis should produce the control recommendations that may be mitigate, may be transfer, may be accept, or may be helpful in avoiding the risk. हमें यहाँ पे risk management और we have to develop a risk management plan. And another, that is the what happened, that is implement the risk management plan, that is what happened. How to implement? बेटा देखो मैं कहने का मतलब है, that is what happened. हमें यहाँ पे जो डेवलपमेंट किए इसको ही हमें that is what happened, that is implement करना चाहिए. खाली मुंह बोले में रखने से नहीं होगा या पेन एंड पेपर में रख देने से नहीं होगा. ठीक लिए हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए. अगर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए. मीन्स इट सेज दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ रिस्क. जो कि असेसमेंट होता है, जो इम्प्लीमेंट मेजर करना पड़ता है, हमें जो रिड्यूस करता है रिस्क को, ये पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी रिस्क से लेकर रिमूविंग करना और एटलीस्ट कुछ रिड्यूस करने के लिए सोचना चाहिए. और मॉनिटर द रिस्क, द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, treating and the managing the risk. It is an important part of the any risk analysis process. हमें क्या करना है? मॉनिटर भी करना है. सिर्फ दैट इज डेवलपिंग इम्प्लीमेंट के बाद भी हमें मॉनिटर करना चाहिए. उसे रिस्क को संभालने के लिए हमें ठीक गाइड भी करना चाहिए. स्टूडेंट्स, so this is the basic concept about the what we have discussed today. That is concept of the risk analysis, benefit of the risk analysis, and the steps of the risk analysis process. So regarding this thing, if and in the next class we may discuss about the risk assessment or and any other questions must be there. Okay, and so many things will be carry on. Students, so be acquainted with the classes. Always visualize the video and regularly make copy your notebooks, get up ready for the examination. Okay, stay home, stay safe. Thank you.